Hello students, we are studying the subject soil mechanics and we were in the chapter permeability of soil. In this video we will study about steady flow in an unconfined well. We will also go through capillary water in this video, but we will start with a numerical. See, we have already studied this topic in our last class. We will try to solve this numerical. One numerical we have solved. Let us try to solve another one. See what the question says. An unconfined aquifer. So first and the foremost thing, the aquifer is unconfined. Okay. Unconfined aquifer is known to be 32 meter thick below the water table. Okay, so below the water table it is 32 meter thick. A constant discharge of 2 meter cube per minute is pumped out of the aquifer through a tube well. Okay, discharge is 2 meter cube per minute till the water level in the tube well becomes steady. Okay, or two observation wells at a distance of 15 meter and 70 meter. Okay, from the tube wells. So falls of 3 meter and 0.7 meter, okay, respectively from the static water levels. We need to find the permeability of the aquifer. Okay, so let us see how we can solve this question. See, first and foremost, let me draw the diagram. Now let us consider that this is ground level. Okay, and this is water table. Okay, this is ground level, GS, no? It is ground, and this is water table, and the width is thickness is 32 meter. Okay, so it is from the water table it is 32 meter. Okay, so this is, let us consider that it is impermeable layer. Okay, now this is the this is the well. Okay, now a discharge of 2 meter cube per minute. Okay, what else? Now there are two observation wells, okay, at the distance of 15 meter. Let us consider that one observation well is here, okay, and another at a distance of 15 meter. Okay, at a distance of 15 meter, another observation well is at a distance of 70 meter. Okay, and the drawdown, okay, the drawdown has also been given. Okay, this is a rough sketch. Okay, now the same manner drawdown will be on the other side also. Now the drawdown has been given at 15 meter. It has been given that 3 meter drawdown, and at 70 meter the drawdown is 0. This distance has been given as 0.70 meter. Okay, so we know the drawdown. Okay, now if we know the drawdown, we can say that the value of H1 and H2 also. H1 is 29 meter as the hole is 32 meters, so H1 we can find. In the same manner, what is H2? H2 will be 37.3 meter. Okay, so if we draw the diagram, everything becomes clear. Now we need to find the permeability or coefficient of permeability. Let us see what the formula is.
we have already studied directly K. Here we have already done this, है ना. K is equal to Q into ln R2 upon R1 pi H2 square minus H1 square. Okay, in our previous class we have already done this. So let us apply that. K is equal to Q into ln R2 upon R1 divided by pi H2 square minus H1 square. Okay, now Q, what is the value of Q? It is 2 meter cube per minute. Okay, we will have to remember this, 2 meter cube per minute into ln. Let us convert it into log. Okay, log R2 is, what is R2? See here, what is R2, है ना, यही डिस्टेंस वेल के मिड से लेकर के जो आपका ऑब्जर्वेशन वेल है सेकंड वाला, R2 70 मीटर, R1 15 मीटर. So it will be 70 upon 15. Okay, clear? Okay, now divided by, what is the value of H2 square minus H1 square? So H2 is 31.3 square minus 29 square. Okay, I believe it is okay. Okay, now and पाई के जगह हम लोग 3.14 लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखिए जो आपका 2 है ना, 2 दैट इज़ द डिस्चार्ज, वो मीटर क्यूब पर मिनट में है. ठीक है, अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो मीटर क्यूब पर सेकंड में हो जाता है. ठीक है, और उस मीटर क्यूब के 1 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, इसके बाद देखिए इसका आंसर कितना आता है. ठीक है, कैलकुलेट करिए. ओके, चलिए, लेट अस नाउ स्टडी steady flow into a confined well. Okay, we know about what is a confined well or a unconfined well. We have already studied unconfined well. Let us now come to confined well and study about steady flow in it. Okay, so first me draw a diagram of a confined well. So this is the ground surface. Okay, what is the meaning of confined well? Confined well means what? confined well का क्या मतलब है? ये मतलब है ना कि जो आपका वाटर है ना वो confined है 2 impervious layers के बीच, है ना. ओके, सो 2 impervious layers मैं यहाँ बना रहा हूँ सबसे पहले. ओके, ये मैंने 2 impervious layers बना दिए हैं. ठीक है, चलिए, इसी के बीच जो आपका वाटर है ना वो कन्फाइंड है. ठीक है, ग्राउंड सरफेस आपको यहाँ दिख रहा है. ठीक है, अब देखिए इसमें एक वेल होगा, है ना, वो वेल को हम लोग कुछ इस तरह बना देते हैं. ओके, अब जो हम लोग यहाँ बात करेंगे ना कन्फाइंड वेल के लिए, तो इसमें वाटर टेबल के टर्म्स में बात नहीं करेंगे. इसमें हम लोग बात करेंगे पीजियोमेट्रिक सरफेस के टर्म्स में. मतलब अब देखिए वाटर अगर कन्फाइंड है ना तो ऑब्वियस सी बात है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ना होगा, है ना. अगर 2 इम्परवियस लेयर्स के बीच वाटर जो आपका है वो कन्फाइंड है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर नहीं होगा, उसकी प्रेशर कुछ और होगी, है ना। कितनी प्रेशर होगी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज पीजोमेट्रिक प्रेशर, है ना। और जिस सरफेस को वो वाटर अटेन कर लेगा ना, ठीक है, अगर उसे फ्री उसे मिल जाए, कहीं से निकलने का मौका मिल जाए, तो वो पानी जिस सरफेस तक पहुंच जाएगा, है ना, या फिर यूँ कहे कि वो हेड उसका कितना होगा, है ना, पिजोमेट्रिक हेड कितना होगा, तो वही है आपका, ठीक है। सो पिजोमेट्रिक सरफेस, ओके। तो यहाँ पर मैं हम लोग बात करेंगे पिजोमेट्रिक सरफेस के टर्म्स में, ठीक है, ना कि वाटर टेबल के टर्म्स में, ओके। समझ में आ रहा है, आई होप। वाटर कन्फाइंड है दो इम्परवियस लेयर्स के बीच, जिसके कारण उस जो वाटर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर नहीं है, उसका प्रेशर कुछ और है, और उस प्रेशर को हम लोग पिजोमेट्रिक प्रेशर बोल रहे हैं। और उसके कारण जो वाटर का हेड होगा ना, जिसे हम लोग पिजोमेट्रिक हेड बोल रहे या पिजोमेट्रिक सरफेस बोल रहे, वो क्या होगा, तो वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉ हो गया क्या, पिजोमेट्रिक सरफेस, ठीक है। दैट इज ओरिजिनल पिजोमेट्रिक सरफेस, ठीक है। अब देखिए, जो यहाँ से आप पंपिंग कर रहे हो, ठीक है, मैं इसको यहाँ तक जो वेल है आपका उसको एक्सटेंड कर देता हूँ। जो आपका पंपिंग आउट हो रहा है ना, जो भी पंपिंग आउट होगा वाटर का, ठीक है, वो मैं कुछ यूँ दिखा रहा हूँ आपको। क्यू इसकी डिस्चार्ज है, ठीक है, ओके। और पंपिंग आउट होने के कारण जो पिजियोमेट्रिक हेड है उसमें रिडक्शन आएगा, ना कि वाटर टेबल में। किस केस में, कन्फाइंड एक्विफर के केस में, ठीक है। हम लोग यहाँ वाटर टेबल के टर्म्स में बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं पिजियोमेट्रिक हेड के टर्म्स में या पिजियोमेट्रिक सरफेस के टर्म्स में। तो जो यहाँ ड्रॉडाउन भी होगा वो पिजियोमेट्रिक सरफेस में है, उसको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। इस डायग्राम में देख लीजिए, मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्या दिख रहा है, ड्रॉडाउन कर्व आपको दिख रहा है, ठीक है। और इस ड्रॉडाउन कर्व में आपको H1 दिख रहा है, S1 दिख रहा है, ठीक है। आपको S2 और H2 भी दिख रहा है यहाँ, ठीक है, S2 और H2, ठीक है, ओके। चलिए देखिए, एक चीज़ यहाँ जो आपका एक्विफर है ना, उसकी जो डेप्थ है वो हमने कैपिटल बी मान लिया है, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हमेशा से एक हम लोग ड्रॉडाउन कंसीडर करते थे, ठीक है। पिछले केसेस में भी हमने किया है, एस ड्रॉडाउन, एच, ठीक है, कहाँ कितनी दूरी पे भाई, तो हमने कहा कि भैया ये हम लोग आर दूरी पे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने जब हम लोग अनकन्फाइंड एक्विफर पढ़ रहे थे उसमें भी सेम चीज़ किया था कि सेंटर से आर दूरी पे हमने एक ड्रॉडाउन को कंसिडर किया था, उसके बाद बात किया था, ठीक है। जो हमारा यहाँ रिलेशन निकालना चाहते हैं इसकी मदद से हम लोग निकाले थे, ठीक है, निकाले थे। और यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, है ना, H1 से H2 तक R1 R2, है ना। जो प्रीवियस केस में सेम चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। बस जो अंतर था, जो डिफरेंस था वो यही था कि हम लोग वाटर टेबल की बात ना करते हुए हम लोग पिजोमेट्रिक सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका देखिए, दो ऑब्जर्वेशन वेल्स आपको मैंने यहाँ दिखा दिया है, जो S1 ड्रॉडाउन और S2 ड्रॉडाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जो S1 है वो R1 दूरी पे है और जो S2 है वो R2 दूरी पे है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि RW क्या है, मैं यहाँ बना देता हूँ इसे। RW क्या है, जो आपका वेल है उसकी रेडियस RW है, ठीक है, ओके। और ये जो टोटल हाइट है ना,
टोटल हाइट पिज़ोमेट्रिक सरफेस से लेकर के जो नीचे वाला आपका ये है इम्परवियस लेयर है वहाँ तक की क्या हाइट है, कैपिटल एच से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और सेंटर से लेकर के वहाँ तक क्या डिस्टेंस है, मतलब जो रेडियल स्फीयर है वो कहाँ तक है, तो वो आर, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें, ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। रेडियल फ्लो है ना, रेडियल फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ों को आप पहले भी देख चुके हैं और हमने यहाँ पर आपको बता दिया थोड़ा सा, ठीक है। जो चेंज है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्या चेंज हुआ भाई कि वाटर टेबल की बात न करते हुए हम किसकी बात कर रहे हैं, पिज़ोमेट्रिक सरफेस की, ठीक है। ओके, चलिए, ये डायग्राम अगर आपका क्लियर है तो अब देखिए, एट रेडियल डिस्टेंस, एट ए रेडियल डिस्टेंस आर, है ना, रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द वेल, है ना। जो रेडियल डिस्टेंस आर की मैं बात कर रहा हूँ ना, रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द वेल, इफ एच इज द पिज़ोमेट्रिक हेड, है ना, पिज़ोमेट्रिक हेड है, तो बताइए भैया द वेलोसिटी कितनी होगी। आपको जो आपका डार्सीज लॉ है उसका इस्तेमाल करते हुए बताइए, ये वेलोसिटी डार्सी लॉ का इस्तेमाल करते हुए आपको बताना है क्या होगा। तो वी आर जो रेडियल वेलोसिटी वो कितनी होगी, आपने अनकन्फाइंड एक्यूफर के केस में देखा था, ठीक है। के इंटू आई होता है, के इंटू आई की जगह हम लोग डी एच अपॉन टी आर लिख देंगे, ठीक है। अब जो आपका सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस थ्रू विच वेलोसिटी ऑकर्स, है ना, इज कितना, 2πr/v। वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, तो पानी की वेलोसिटी, है ना। तो देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस सेंटर से आर, ये है ना, ये अब यहाँ से हम लोग एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो ये और यहाँ भी वही, ठीक है। ये आपको यहाँ 2D में दिख रहा है, इसको अगर 3D में आप इमेजिन करेंगे तो एक सिलेंडर बन रहा है ना, उसी सिलेंडर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इस सिलेंडर की हम लोग बात कर रहे हैं, ओके। और इस सिलेंडर में देखिए हम लोग यहाँ जो लिखे हैं कि एक जो सिलेंडर बना तो उसका कितना एरिया हमने ले लिया है, ठीक है। तो 2πr/b, क्यों 2πr/h होता ही है, h मतलब हाइट, तो हाइट हमने ये h क्यों नहीं लिया, पूरा हाइट कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि जो वेलोसिटी हो तो इसी b में ही तो हो रही है ना, b जो हाइट है या डेप्थ है, वेलोसिटी v की बात तो इसी में हो रही है, ऊपर तो ऐसे कोई वाटर है ही नहीं कि वेलोसिटी की बात करेंगे, इसलिए हमने 2πr/b की बात की, ओके। तो आपको पता है कि क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, हम लोग पढ़ रखे हैं, है ना। तो Q इज इक्वल टू के आई ए, और के आई की जगह हम लोग डी एच अपॉन डी आर लिख चुके हैं, और एरिया हमने देखा कि 2πr/b होगा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, डी एच निकाल दिया और बोला कि डी एच इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2π, डी एच क्या होगा, डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2π, ये वाला इधर नीचे चला जाएगा, ठीक है, के इंटू बी डी आर अपॉन आर, जो अनकन्फाइंड के लिए किया था, कुछ नया हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्या किया था अगला स्टेप, इंटीग्रेटिंग, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। और यहीं पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या था भाई, R1 R2 था ना, जो हमने बॉर्डर लेना था और बाउंड्री लेना था, R1 R2 H1 H2, ठीक है। इसको ये लिख दिया हमने, और डायरेक्ट मैं इसको लिख दे रहा हूँ, जो हमें इक्वेशन मिलता है वो डायरेक्ट लिख दिया हमने यहाँ, 2πk b ln R2 अपॉन R1। फाइनली जो आपका Q निकल कर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2πk b H2 माइनस H1
डिवाइडेड बाई ln R2/R1। तो यही आपका इक्वेशन निकल कर आता है। ठीक है, जो फाइनल है, यहाँ से आप बहुत आसानी से k निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कन्फाइंड के लिए हमने देखा, अनकन्फाइंड के लिए हमने देखा। ठीक है, पहले अनकन्फाइंड के लिए देखा था, फिर कन्फाइंड के लिए देखा कि अगर इस तरह का कोई एक्विफर है तो कैसे फील्ड में जा कर के हम लोग निकाल सकते हैं k की वैल्यू। ठीक है, चलिए ये आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, देखिए एक चीज़ और यहाँ की सेम फार्मूला को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ड्रॉडाउन्स S1 S2 है तो यहाँ कुछ चेंज कर सकते हैं ना। ठीक है, S1 इज इक्वल टू क्या, H माइनस H1 होगा, और S2 इज इक्वल टू H माइनस H2 होगा ना। ठीक है, तो यहाँ अगर H2 माइनस H1 लिखा है, देखिए यहाँ H2 माइनस H1 लिखा हुआ है ना, तो वहाँ अगर कुछ चेंज हम लोग करना चाहें, 2πkb, H2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए H2 की जगह क्या लिख सकते हैं, H2 की जगह लिख सकते हैं, H2 की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए, H माइनस S2 है ना, माइनस H1 की जगह क्या लिख सकते हैं, H माइनस S1, H माइनस S1, डैट मीन्स H माइनस S2 माइनस H प्लस S1, इसका मतलब S1 माइनस S2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए वही चीज़ यहाँ, S1 माइनस S2 डिवाइडेड बाई ln R2/R1। देखिए एक टर्म होता है K इंटू बी, ट्रांसमिसिबिलिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो के बी की जगह हम लोग टी बी लिख सकते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी। K इंटू बी जो है ना, इसको ट्रांसमिसिबिलिटी बोलते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए दैट्स इट। जो आपका परमिएबिलिटी चैप्टर है ना, वो हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, परमिएबिलिटी इज़ ओवर। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। गेट के न्यूमेरिकल्स हमने अभी नहीं किए हैं, तो मैं गेट के जो न्यूमेरिकल का सीरीज़ ऑलरेडी चला रहा हूँ, जिसमें 4 वीडियोस मैंने डाले थे, मैं उसमें फिर आगे 4 और 5 और वीडियो डालूँगा। ठीक है, जब उसको सॉल्व करके डाला जाएगा वीडियो के थ्रू। ठीक है, इसी पार्ट में हम लोग थोड़ा सा आज कैपिलरी एक्शन को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, लेट अस नाउ सी व्हाट इज कैपिलरी वाटर। देखिए कैपिलरी वाटर को जानने से पहले हमें जानना होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर। ठीक है, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉइल इन वाटर। जो आपका सॉइल है उसमें कितने तरह के वाटर होते हैं, उन सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो सॉइल वाटर है, सॉइल में जो वाटर है इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, जो सॉइल में वाटर होता है वो 2 कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, क्लासिफाई होते हैं। पहला है फ्री वाटर, मतलब जो वाटर मूव कर सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, और दूसरा है हेल्ड वाटर, जो मूव नहीं कर सकता है फ्रीली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो सॉइल के अंदर 2 तरह के वाटर, फ्री वाटर और हेल्ड वाटर। फ्री वाटर को आइए थोड़ा डिटेल में देख लें। फ्री वाटर मूव्स इन द पोर्स ऑफ द सॉइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है और ये वाटर का मूवमेंट पोर्स में होगा। ठीक है, फ्री वाटर फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वेरेवर देयर इज डिफरेंस इन टोटल हेड। ठीक है, फ्लूइड में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, इवन सॉइल में भी हमने पढ़ा है कि जहाँ हेड डिफरेंस है फ्लो होगा, और द रेट एट विच द हेड इज लॉस्ट अलॉन्ग द फ्लो पैसेज इज इक्वल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आई के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानकारी रखते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, ये बात हुई फ्री वाटर की। हेल्ड वाटर क्या है? Held water is retained in the pores of the soil and it cannot move under the influence of gravitational force। अब जो आपका held water है ना, उसको हमने 3 टाइप्स कर दिया। ठीक है, जो आपका held water है उसके भी 3 टाइप्स, फ्री वाटर तो है ही, उसके बाद held water के 3 टाइप हो गए। ठीक है, held water के 3 टाइप कौन कौन से? स्ट्रक्चरल वाटर, एड्जॉर्ब्ड वाटर एंड कैपिलरी वाटर। आइए तीनों को एक एक करके देखते हैं। स्ट्रक्चरल वाटर क्या है? इट इज केमिकली कंबाइंड वाटर इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल ऑफ द सॉइल।
दिस वाटर कैन नॉट बी रिमूव विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल। जब तक आप जो आपका सॉइल का मिनरल है ना उसके स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करोगे तब तक आप स्ट्रक्चरल वाटर को नहीं रिमूव कर सकते हो। डैट मीन्स दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सॉइल, है ना। A temperature of more than 300 degrees centigrade is required for removing the structural water, है ना। It is considered as integral part of the soil। मतलब structural water जो held water का part है, एक तरह का held water है, तो ये तो soil का एकदम integral part है, ठीक है। That is why it is held water। दूसरा है adsorbed water। adsorbed water कहीं पहले भी पढ़े थे क्या हम लोग? AD है ना, not absorbed, it is adsorbed। adsorbed water कहीं पढ़ा है क्या हमने पहले? पढ़ा है, ठीक है। क्ले के बारे में जो हम लोग जान रहे पढ़ रहे थे प्लास्टिसिटी में, तो हमने पढ़ा था एड्सॉर्ब्ड वाटर, वही चीज़ यहाँ बताई जाएगी। द वाटर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेस एग्जिस्टिंग ऑन द सॉइल सरफेस इज नोन एज एड्सॉर्ब्ड वाटर, वहाँ हमने देखा था इसको, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ एड्सॉर्ब्ड वाटर डिपेंड्स अपॉन कोलाइडल फ्रैक्शन ऑफ सॉइल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्ले मिनरल, ठीक है, एनवायरमेंट सराउंडिंग ऑफ द पार्टिकल, ये चीज़ भी हमने देखा था, ठीक है। कि जो चार्ज है तो आपका जो क्ले सरफेस है वो चार्ज होता है, वाटर डाइपोलर है, इस तरह वाटर एड्जॉर्ब हो जाता था क्ले मिनरल के सरफेस पे, ठीक है, हमने देखा था वहाँ। एड्जॉर्ब्ड वाटर जो है इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्ले सॉइल डेफिनेटली, है ना। क्ले सॉइल में प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एड्जॉर्ब्ड वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, और कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इसका कोई रोल नहीं था, ठीक है, क्योंकि मिनरल्स तो क्ले सॉइल्स में थे, है ना। द एड्जॉर्ब्ड वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एक चीज़ और देख लीजिए, जो एड्जॉर्ब्ड वाटर है उसको हम लोग हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर इन एन एयर ड्राइड सॉइल इज डिफाइंड एट हाइग्रोस्कोपिक वाटर। देखिए जो आपका सॉइल है वो उसमें वाटर है, मैंने उसको एयर ड्राई कर दिया, उसका ओवन ड्राई भी संभव है, तो ओवन ड्राई की बात नहीं हो रही है, एयर ड्राई की बात करें, ठीक है। एयर ड्राइंग जो है वो कैपिलरी वाटर और फ्री वाटर को हटा देता है, तो जो बचता है वो एड्जॉर्ब्ड वाटर ही होता है, ठीक। हाइग्रोस्कोपिक वाटर डिपेंड्स अपॉन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर ऑफ एयर। इट इज़ अज्यूम दैट ओवन ड्राइंग रिमूव्स ऑल हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जो आपका ओवन ड्राई हम करें तो फिर आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एयर ड्राई में हाइग्रोस्कोपिक वाटर रिमूव नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर ओवन ड्राई करें तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी रिमूव हो जाएगा, ओके। द अमाउंट ऑफ वाटर इन एन एयर ड्राइड सैंपल, जो ये हमने बताया वही बता रहे हैं। The amount of water in an air dried sample expressed as percentage of dry mass is known as hygroscopic water content। एयर ड्राई में हाइग्रोस्कोपिक वाटर रह जाता है ना, ठीक है। तो वाटर कंटेंट, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कंटेंट अगर डिफाइन करना चाहे तो कुछ इस तरह कर सकते हैं। एंड हेल्ड वाटर में हमने स्ट्रक्चर को देखा, एड्जॉर्ब को देखा, फाइनली हम लोग कैपिलरी वाटर को देखेंगे। देखिए कैपिलरी वाटर क्या है? वाटर हेल्ड इन द इंटरस्टिसेस ऑफ द सॉइल ड्यू टू कैपिलरी फोर्सेस इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर। कैपिलरी फोर्सेस के बारे में तो जानना पड़ेगा ना, तभी तो जानेंगे ना कैपिलरी वाटर के बारे में, है ना। तो कैपिलरी वाटर क्या है? इंटरस्टिसेस में वाटर है, कैपिलरी फोर्सेस के कारण उसे बोलते हैं कैपिलरी वाटर, ठीक है। देखिए सरफेस टेंशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज सरफेस टेंशन? पानी का एक बूंद टेबल पे गिरा और उसने स्फेरिकल शेप ले लिया, काहे भैया? तो सरफेस टेंशन के कारण। क्यों? जो वाटर है वो एकदम मिनिमम जो उसकी एरिया है वो रखना चाहता है, ठीक है। किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। सरफेस टेंशन फोर्सेस जो हैं टेंड टू रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ द एयर लिक्विड सरफेस टू अ मिनिमम। जो एयर लिक्विड सरफेस है उसको मिनिमम ले जाएगा, उसका एरिया को मिनिमम रखेगा। सरफेस टेंशन फोर्स। देखिए सरफेस टेंशन को समझिए, जैसे कि आप घर का पोचारा करते, पेंट करते हैं ना, तो जो ब्रश होता है ना कैसे इधर उधर लहराया हुआ रहता है एकदम, है ना। लेकिन जैसे इसको आप पेंट में डुबाओगे एकदम एक साथ सब चिपक जाते हैं ना, तो वो भी सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। देखिए सरफेस टेंशन ऑफ वाटर और नॉर्मल टेम्परेचर इज अबाउट कितना होता है? 0.073 न्यूटन पर मीटर। इट डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे सब टेम्परेचर को बढ़ाओगे सरफेस टेंशन घटता चला जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे काम का चीज़, कैपिलरी वाटर exist in soil so long as there is an air water interface। जब तक एयर वाटर इंटरफेस है, एयर वाटर इंटरफेस का मतलब सरफेस टेंशन, ठीक है। कैपिलरी वाटर उसी समय तक एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और हमेशा ये याद रखिएगा जो कैपिलरी वाटर है ना, कैपिलरी वाटर वो हमेशा टेंशन में होता है।
मतलब उसको हम लोग निगेटिव कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा कंप्रेशन को पॉजिटिव लेते हैं सॉइल मैकेनिक्स में, और जो भी फोर्स है दैट इज़ कैपिलरी वाटर, उसको हम लोग टेंशन मानेंगे, दैट इज़ इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, देखिए अब कैपिलरी राइज इन स्मॉल डायमीटर ट्यूब। हमें सॉइल में पता है कि कैसे वाटर राइज करता है ना, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तो इसको हम लोग एक ट्यूब के सहारे समझने की बस कोशिश करेंगे। ठीक है, कैपिलरी को एकदम बेसिक टर्म्स में अगर आपको समझना है ना, तो आप ऐसा करिए कि एक गिलास पानी लीजिए, उसमें कपड़ा का लंबा सा टुकड़ा डुबाइए, तब देखेंगे पानी कपड़े पे ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। समझ रहे हैं ना, ऊपर की ओर चढ़ रहा है। क्यों भैया? कैपिलरी एक्शन के कारण। ठीक है, एयर वाटर इंटरफेस मिला उसको, सरफेस टेंशन, और वो ऊपर की ओर चढ़ने लगा। ठीक है, सॉइल में भी यही चीज़ें होती है क्योंकि उसमें भी इंटरस्टिसेस प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए जो सॉइल है ना आपका, मान लीजिए ये आपका सॉइल है ना, सॉइल में आपके इंटरस्टिसेस होंगे ना जी, होते हैं कि नहीं? इंटरस्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं एक इंटरस्टिसेस यहाँ जो इंटरस्टिसेस है उसको मैं कनेक्शन उसका दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका सॉइल है और ये कनेक्टेड इंटरस्टिसेस हो गए। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इट इज़ लाइक ए ग्लास ट्यूब, है ना, एक ग्लास ट्यूब की तरह, स्ट्रेट ग्लास ट्यूब की तरह ये है। वैसी बात है कि एकदम 100% तो नहीं है, लेकिन हम अपनी चीज़ों को समझने के लिए और समझाने के लिए हम लोग इसको एक ग्लास ट्यूब के रूप में ले लेते हैं। स्ट्रेट ग्लास ट्यूब, है ना, सीधा सा एक ग्लास ट्यूब, उसमें कैसे कैपिलरी एक्शन होता है इसको हम लोग पढ़ लेंगे, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सॉइल में कैसे कैपिलरी एक्शन होता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं कि ग्लास ट्यूब में कैसे पानी चढ़ता है, कितना ऊपर तक चढ़ सकता है। वाटर राइजेज इन एन स्मॉल डायमीटर कैपिलरी ट्यूब्स बिकॉज ऑफ, अब देखिए कैपिलरी एक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अडहेशन एंड कोहेशन। अडहेशन एंड कोहेशन, ये अडहेशन क्या है? व्हाट इज अडहेशन एंड व्हाट इज कोहेशन, ये हमें यहाँ देखना है। Adhesion occurs because water adheres or sticks to the solid walls of the solid wall of the tube, है ना। एडहेशन क्या है? मतलब जो आपके वाटर पार्टिकल्स हैं और जो ट्यूब है ना, ग्लास ट्यूब, तो ये ग्लास ट्यूब और वाटर पार्टिकल्स के बीच एक इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपको एडहेशन कहलाएगा। ठीक है, और कोहेशन क्या है? वाटर और वाटर पार्टिकल के बीच, जो वाटर पार्टिकल और वाटर पार्टिकल के बीच जो इंटरेक्शन होगा उसे हम लोग कोहेशन बोलेंगे। ठीक है, तो एडहेशन और कोहेशन ये दोनों के कारण कैपिलरी राइज होती है। ठीक है, इफ ए ग्लास ट्यूब ऑफ ए स्मॉल डायमीटर ओपन एट बोथ एंड्स इज लोअर्ड इनटू द वाटर लेवल राइज। देखिएगा आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं इसको, कि वाटर में एक ओपन ट्यूब आप डालोगे ना, बोथ साइड ओपन ट्यूब अगर उसमें इंसर्ट करोगे तो पानी ऊपर राइज कर जाता है। क्यों भाई? तो कैपिलरी एक्शन है ये, और एडहेशन और कोहेशन के कारण। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक ट्यूब है। ठीक है, ये मैंने यहाँ ट्यूब बना दिया है, और ये मैंने कहाँ क्या किया, पानी में डुबोया है। ठीक है, इस ट्यूब को, तो हम लोग देखते हैं कि पानी राइज हो जा रही। कहाँ तक राइज हो गई? तो यहाँ तक राइज हो गई। ठीक है, मेनिस्कस मैंने बताया था शायद, है ना, बताया ना चैप्टर 2 में मेनिस्कस, तो यहाँ भी मेनिस्कस फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और मेनिस्कस फॉर्मेशन जब हो गया आपका, तो अब देखिए मेनिस्कस फॉर्मेशन हो गया, यहाँ सरफेस टेंशन की बात हो रही है ना, तो यहाँ क्या होगा, पानी जो राइज किया है वो HC हाइट तक राइज किया हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ सरफेस टेंशन मेनिस्कस की फॉर्मेशन हुई है, सरफेस टेंशन है यहाँ। ठीक है, तो इस पर फोर्स एक्ट होगा। ये देखिए ये फोर्स एक्ट हो गया यहाँ। ठीक है, कितने एंगल पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है? तो हमने कहा थीटा एंगल पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये सरफेस टेंशन को हम लोग TS से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ओके, ये समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, मैंने एक ट्यूब को लिया, पानी में डुबो दिया हल्का, तो पानी ऊपर की ओर राइज करेगा। प्रैक्टिकली होता है, आप करके देखो घर पे, पानी राइज करेगा। डायमीटर ऑफ ट्यूब ऑब्वियसली मैटर करेगी, तो पानी राइज करेगा। ठीक है, पानी राइज करेगा। अब क्या होगा,
सरफेस टेंशन है और एक फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, चारों ओर। ये फोर्स जो डायरेक्शन है वो मैंने दिखाया, ठीक है, टी एस इधर भी, टी एस इधर भी, हर टी एस एक्ट हो रहा है, ठीक है। 2D में आपको दिख रहा है, 3D में क्या होगा, ये हर डायरेक्शन में है, ठीक है, ओके। अब देखिए इस सिचुएशन को समझिए, ये फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। इस फोर्स का अगर मैं दो कंपोनेंट ले लूँ तो एक इधर एक ऊपर की ओर फोर्स लगेगा ना, ठीक है, कंपोनेंट अगर ले लिया जाए तो, ठीक है। तो ये जो साइड वाला है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब नीचे की ओर भी तो एक फोर्स लगेगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज जो वेट ऑफ वाटर है, ये जो वाटर का वेट है ये नीचे की ओर खींचेगा ना, ग्रेविटी के नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। कौन कौन से फोर्स, जो ऊपर की ओर सरफेस टेंशन फोर्स है और जो नीचे की ओर ग्रेविटी फोर्स है, ठीक है, या फिर वेट के कारण जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम बनेगा। तो आइए उसको देखते हैं ज़रा। देखिए एफ यू क्या है आपका, अपवर्ड पुल, ठीक है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है, अपवर्ड फोर्स। कितना इसका वैल्यू है, देखिए ये जो ऊपर की ओर फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या आपको नहीं लगता टी एस कॉस थीटा होगा, कंपोनेंट लेंगे ऊपर वाला, ठीक है। लेकिन टी एस कॉस थीटा पूरे के पूरे सरफेस पे एक्ट हो रहा है ना, तो टी एस कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर एरिया जो होता है सर्किल का, ठीक है। तो पाई डी भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स जो है ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है। एफ डी अगर मैं लिख दूँ, नीचे की ओर जो फोर्स आउट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू मास ऑफ वाटर इन ट्यूब, है ना। अब मास है तो भाई नीचे की फोर्स एक्ट करेगा ही। कितना होगा, एफ टी की वैल्यू बता सकता है कोई, क्या होगा भाई, कितना होगा, हमें चाहिए वेट ऑफ द वाटर नीचे की ओर, यही है ना, वही तो डाउनवर्ड फोर्स है, वेट ऑफ वाटर। तो और गामा डब्ल्यू लिख दे, दैट इज वेट बाई वॉल्यूम। इसको वॉल्यूम से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ काम हो गया। वॉल्यूम क्या होगा, पाई/4 डी स्क्वायर एच। ये कहाँ से आ गया, पाई/4 डी स्क्वायर एच। तो एरिया कितना होता है, जो एरिया है पाई आर स्क्वायर यही होता है ना, एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वो इंटू एच, सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, तो पाई स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए अब दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, सीधे सी बात है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए एफ यू इज इक्वल टू एफ डी, खत्म कहानी, ठीक है। तो टी कॉस थीटा पाई डी इज इक्वल टू गामा डब्लू पाई/4 डी स्क्वायर एच सी। यह अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आप फाइनली पाओगे कि एच सी निकल कर आएगा 4 ts कॉस थीटा अपॉन गामा डब्लू डी, ठीक है। मतलब क्या है, एच सी आप ट्यूब लिए एक पर्टिकुलर डायमीटर डी का, तो वो पर्टिकुलर डायमीटर डी का ट्यूब में वाटर कितना राइज करेगा, कितना राइज करेगा, एच सी हाइट करेगा। तो कितना हाइट राइज कर रहा है वाटर एक पर्टिकुलर डायमीटर डी के लिए, वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यह एक चीज़ और है कि अगर जो वाटर आपका बहुत क्लियर होता है ना, प्योर वाटर होता है ना, तो ये जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाती है, ठीक है। बहुत प्योर वाटर है और ये जो मेनिस्कस है बिल्कुल हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस बन जाता है, ये पूरी तरह ये पूरी तरह आपका हेमिस्फेरिकल हो जाएगा, ठीक है, ओके, 0 डिग्री। तो उसके लिए आप एच सी निकाल सकते हो, कितना होगा उसके लिए एच सी, और एच सी इज इक्वल टू कितना 4 ts cos थीटा, थीटा 0 1 बाई गामा डब्ल्यू इंटू टी, ठीक है। चलिए तो ये था थोड़ा सा कैपिलरी की जानकारी मुझे देनी थी, क्योंकि जब हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर कैपिलरी एक्शन की बात होगी। तो ये याद रखिएगा, कैपिलरी एक्शन जो है, जो कैपिलरी हम लोग वाटर है हमेशा निगेटिव है ना, टेंशन में रहता है, इसलिए निगेटिव प्रेशर लगाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वाटर किस हाइट तक राइज कर सकता है उस चीज़ को भी हमने यहाँ देख लिया है, ठीक है। सो दैट्स इट। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ मैं इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल की बात करूँगा और उस चैप्टर की शुरुआत करूँगा।